and all my dear friends. My name is Priyanka. I would like to say thank you to give me such a great opportunity to speak something on Republic Day. Tomorrow we will be celebrating our 71st Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day in India every year. This is a great festival of India. We are regularly celebrating the Republic Day in India. We are greet each other. Since 1950, as the Constitution of India force on this day. Do you know what is Republic means? Republic means the supreme power of the people living in the country. Here, only the public has the right to elect their representative as a political leader. So, India is a republic country where we people elect our representatives as a president, prime minister and other political leaders. Our great Indian freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and Chandrasekhar Azad and many more others struggled a lot to get our freedom back. They struggled a lot so that their future generation may live without struggle. No one can never forget their sacrifice for our country. These are the special occasions, so we remember them and salute them. India is a secular country with diverse religion and cultures. Many festivals are celebrated here with lots of joy and fun. The important significance of Republic Day is that it is celebrated by all the categories of the nation without making any discrimination. Republic Day recollects the spirit, pride, patriotism among the citizens. All the nation take place to be a good citizen. Now, at last, I would like to say, being Indian is our identity. Being Indian is our identity. However, being Republican is our country's identity. Being Republican is our country's identity. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. क्या करेगा कोई उनके हौसलों का भुगतान? क्या करेगा कोई उनकी शहादत का कर्ज? उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है, देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं, आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है, शहादत को तैयार है, शहादत को तैयार है। अब मैं ऐसे ही फौजियों को नमन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उन साथियों को जो मुझे फौजी बनना है। क्या? नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बाबूजी भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए। अब मैं तुझे नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ये धरती भी मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ। अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। Well done. You have been selected for the Indian Army. हर किसी में अपने देश के लिए लड़ने की हिम्मत और जान देने का जज्बा नहीं होता। फौजी ये अपने अंदर लेके पैदा होता है। We all are proud of you. Good luck. विक्रम सिंह, हम सब तो यहाँ फौज में किसी न किसी मकसद से आए हैं, लेकिन अगर हमें कुछ होता है तो हमारे घर वालों को देखने के लिए कोई ना कोई है। पर तेरी तो माँ भी घर पर अकेली है। अगर तुझे यहाँ कुछ होता है तो क्या तूने कभी सोचा है तेरी माँ का क्या होगा? फिर तू यहाँ फौज में क्यों आया है?
पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। All units, I repeat, all units, सभी सैनिकों को यह सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है। I repeat, जंग कभी भी हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें। बाबू, इस इलाके के सबसे ऊंचे पॉइंट पे मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूँ। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। All units alert, all units alert। जंग का ऐलान हो चुका है। दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। सारी बटालियन अपनी पोजीशन पर पहुंचे। आई रिपीट, सारी बटालियन अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचे। जवानों, दुश्मन देश की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। सारी बटालियन तैयार। यस सर। हमला करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। लगता है दुश्मन देश हम पे हावी होता जा रहा है। सब पीछे हटो। विक्रम सिंह अपनी पोजीशन में वापस आओ। सर। विक्रम सिंह जैक्सन ऑर्डर, कम बैक टू योर पोजीशन। मेरे पिताजी देश के शहीद हो गए सर, फिर मैं वापस कैसे आ जाऊंगा? मेजर कर्नल राजवीर सिंह, कवर फायर जोन से। जब घायल हुआ है माए, फिर अपनी जान गवा दी। साथियों तुमको मेरे जीत ही जीत सदा, बस इतना याद है एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद एक साथी और भी था। बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है उस बेटे की मां होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा
जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सुलाने के लिए खुद रात भर जागा। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। एक ऐसा बेटा जिसने मेरा व इस धरती का, अपनी दोनों माओं का सर फक्र से ऊंचा किया। तो क्या हुआ जो मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ, वो जाते जाते अपनी माँ को कितने सारे बेटे दे गया। वो हर एक सिपाही जो अपने देश के लिए लड़ रहा है मेरा बेटा है, और मुझे अपने हिंदुस्तान के उस हर बेटे की माँ होने का फक्र है। जय हिंद। ये एड्रेस कहाँ का है? बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की। हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप न कर दे। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव चली धूप मैली क्यों है। दिए गए पत्थर है खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर है खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रात चल पड़ी है, क्या आग चल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रात चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। आज देश में जो हालात हैं उनको लेकर ये कार्यक्रम हमारे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत आप लोगों के सामने। खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। शुगर अल्लाह की ध्वज बना,
गगन भी कब कपाएगा अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Trending of late, that's nothing more than a charade. What society really makes of these words? Just girls come on the stage. ये जो अभी बच्चियां प्रस्तुति देने के लिए जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आज पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जिसको हमारी ये बच्चियां मत मारे, मने मत मारे माँ, मने मत मारे।
बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति इन बच्चियों के द्वारा। गर्भ के बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूँ। आज गर्भ में चीख रही से, आज गर्भ में चीख रही से, बेटे हिंदुस्तान की मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। आज गर्भ में चीख रही से, आज गर्भ में चीख रही से, बेटे हिंदुस्तान की मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। सास तेरा कहा न मानूं रे, बेटी ने दुनिया में लाऊंगी। सास तेरा कहा न मानूं रे, बेटी ने दुनिया में लाऊंगी। बहुए तू क्यों कर लावेगी, गर्भ में जांच कराऊंगी। सास क्यों करवावेगी, तेरी मैं रपट लिखा दूंगी, तेरी मैं रपट लिखा दूंगी। कैद डॉक्टर की करा दूंगी, बहुए में अईब समझ आ गई, बेटी ने दुनिया में लावांगे। मारे महल पे बोल है टटीरी, मारे महल पे बोल है टटीरी। घुटी देऊ कर है टटीरी, घुटी देऊ कर है टटीरी। जय टटीरी मार बेटी हो जा, जय टटीरी मार बेटी हो जा। सोने की चोच घड़ा दूं है टटीरी, सोने की चोच घड़ा दूं है टटीरी। मारे महल पे बोले टटीरी, मारे महल पे बोले टटीरी हो। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग।
हमारे घर सड़क के लिए ही जरूरी नहीं होती, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। देश की सफाई एकमात्र एक सफाई कर्मी के द्वारा ही नहीं, इस एकमात्र सफाई कर्मी की जिम्मेदारी ही नहीं, क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं? इसी बात को आपके सामने रखने आ रही है कोमल यादव। प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्या कोई ऐसा है जो अपने मकसद को नहीं पाना चाहता, लेकिन क्या अपने मकसद को पाने की जिम्मेदारी निभा रहे हो? मैं एक बच्ची हूँ पर बात पते की जानती हूँ, एक भारतीय हूँ और भारतीय होने की जिम्मेदारी भी जानती हूँ। बताऊँ कौन सी जिम्मेदारी? इस धरती माँ के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी। और कर्ज कैसे चुकाते हैं जनाब, कभी गौर कीजिएगा। आपके आसपास कहीं आपको प्लास्टिक के कप बिखरे पड़े मिलेंगे, कहीं सड़क पर थूक देखने को मिलेगा, एक बड़ी नदी की जगह काला नाला मिलेगा। क्या यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना बचा हुआ कूड़ा दूसरों को देखने के लिए छोड़ दें? कहने को हम तरक्की कर रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सोच बढ़ रही है? आप खुद सोचिए कि इतनी गंदगी फैलाने के बीच जो बीमारियां फैलती हैं जैसे डायरिया है, डायबिटीज, क्या वे कम हो जाएंगी? कभी आपके बच्चे इन बीमारियों से बच सकेंगे? यदि नहीं तो समझते क्यों नहीं? इन सब का नतीजा क्या होगा? अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे, नाजायज पैसा और वक्त बर्बाद होगा। और तो और जो हम देश का चेहरा बना रहे हैं ना, लोग नीचा किसे समझेंगे? सोचिए, विदेशों में आप कभी जाएं तो देखना और सोचना वहाँ गंदगी क्यों नहीं मिलती। भाइयों और बहनों, हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे तौर तरीके ही हमारी पहचान बताते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो? क्या आप चाहते हैं? क्या गंदगी फैलाने से नाम रोशन हो जाएगा? यदि नहीं तो सोचिए, जो गंदगी हमने फैलाई है उससे जो गंदगी हवा में धुल गई, इतनी गंदगी में सांस कैसी ली जैसे तो अन्य कहाँ से आएगा? घरों को चाहे कितना ही चमका लो, पर सड़क पर कभी तो उतरोगे ही ना। अगर हमारी सड़कें गंदी हुई तो बुरा भी हमें ही लगेगा, अगर हमने स्वच्छता रखी तो अच्छा भी हमें ही लगेगा। कहते हैं स्वच्छता में भगवान निवास करते हैं। इस तथ्य को सार्थक करने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की है, ताकि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक हमारा देश एकदम स्वच्छ हो जाए। तरह तरह की योजनाएं बनाई है, पर आपको नहीं लगता कि ये सब बेकार हो जाएगा? अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो देखिए, मोदी जी तो हर जगह सफाई करने आएंगे नहीं, और ना ही सरकार। वे तो के नए अफसानों की जरूरत है। भगत आजाद जैसे आजादी के दीवानों की जरूरत है। भगत आजाद जैसे दीवानों की जरूरत है। भारत को फिर देशभक्त परवानों की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी थे। इन्होंने देश की आजादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। इसी का मंचन करने मंच पर आ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार। जोरदार तालियों से इनका को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर ही है। आइए चितर सिंह जी, आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। कल क्या तारीख है? कल बहुत दूर है। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं तो नहीं घबरा रहा, परंतु आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो यहाँ इतने सालों से हैं, आपने जाने कितने लोगों को फांसी पर चढ़ता देखा होगा। आपके सामने इतने गए और इतने आए, फिर आप इतने उदास क्यों हैं? मेरे सामने कितने गए और कितने आए, लेकिन आप जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। सुखदेव को आज ही फांसी देनी है। भगत सिंह को आज ही फांसी देनी है? पुलिस गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है।
देनी है to hang them till death. क्या मैं इसके लिए जान सकता हूँ? वो अखंड साल को जाने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह फांसी पर होगा। पूरा लाहौर मॉनिटर जेल के बाद जमा हो जाएगा। लेकिन लोग भगत सिंह की डेड पर से जुलूस निकाले, गवर्नमेंट इसका परमिशन नहीं दे सकता है। इस बात के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह के मर जाने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है। सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक भगत सिंह को आज रिहा कर देना चाहिए। You lost your blood mind. तो भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कर सकता है। मैं सोच सकता हूँ और मैं सच जानता हूँ। और सच यह है कि हम में से किसी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। इस बात का फायदा उठाकर अंग्रेज सरकार भगत सिंह को फांसी दे रही है। मत बोलो जेलर, क्या करना है तो करना हमारा काम है। हम कानून मांगा है तो जब तक उसे तोड़ भी सकता है। तुम तो सरकार का नौकर है, तुम्हें तो सरकार का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। हवलदार, छात्र सिंह को ब्लॉक करो। छात्र सिंह, भगत सिंह के अंतिम स्नान के लिए पानी लेकर आओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज 23 तारीख है। फांसी का दिन तो 24 मार्च का है ना साहब। उन्हें आज ही फांसी देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सरासर धोखा है। फांसी का पहला दिन माँ बाप और रिश्तेदार को होता है ना। जो हुक्म दिया था उसका पालन करो। नहीं मानूंगा तुमको, नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे साहब, इतना बड़ा जुर्म मत करो। आपको ऊपर वाले का वास्ता है, ऐसा मत करो। माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे आखिरी बार तो उन्हें मेटो की शक्ल देख लेने दो। तुम्हारी अंग्रेजी सरकार बचेगी नहीं, गिरेगी, गिरेगी। ये हमारी बद्दुआ है। निकलो साला कुत्ता इस हिंदुस्तान से। निकलो साले कुत्ता भेड़िए यहाँ से। सरदार जी, फांसी का हुक्म आ गया है। अब आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने बचे हैं, पढ़ लूं? नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना तू जा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना तू जा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, माया रंग दे। खून से खेलेंगे होली, दार वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या तुम्हारा अंतिम समय?
अपनी मातृभूमि के लिए सीना तान के लड़ेगा। हम तो करोड़ भारतवासी के सीने में ज्वाला जलाने आए हैं। उसी ज्वाला में जलकर राख होगी तुम्हारी अंग्रेजी हुकूमत। अब हिंदुस्तान जाग उठा है, तैयार है क्रांति के लिए। सभी ने सांसें रोक ली है नई दौड़ में शामिल होने के लिए अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ। दिलों में नया जोश भर गया है। सुना उन बुलंद आवाज़ों को जो अंग्रेजी के खिलाफ गूंज रही है। अब खाक होने जा रही है तुम्हारी अंग्रेजी सियासत। दीदार करने को दिल बेकरार है, दीदार करने को दिल बेकरार है। ए मौत जल्दी आ तेरा इंतजार है, ए मौत जल्दी आ तेरा इंतजार है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। इसी तरह की भावना व्यक्त करने मंच पर आ रहे हैं मेरे देशभक्त साथी, जिनके गीत के बोल है तेरी मिट्टी में मिल जावा।